آج ہم ایک گلاس دودھ سے تیار کریں گے یہ مزیدار برفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زبردست سی برفی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس دودھ لیں گے۔ یہ دودھ جو ہے نا فریش دودھ ہے اور فل کریم دودھ ہے۔ اگر آپ لوگوں کا دودھ پتلا ہے تو اس میں پھر 2 چمچ جو ہے نا ملک پاؤڈر کا بھی لازمی استعمال کیجئے۔ اس کے بعد ہم نے ایک برتن لے لی ہے، تو اس برتن میں اب ہم یہ دودھ ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے دودھ اس میں ڈال دیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں نا چمچ چلانا ہے۔ 4 سے 5 منٹ ہم نے اس دودھ کو پکانا ہے، اس کو ہم نے گاڑھا کرنا ہے۔ پھر باقی چیزیں میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ ہم نے کیا کیا اس میں ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ریڈی کرنا ہے دودھ۔ ملک پاؤڈر کوئی بھی استعمال کر سکتے، جو بھی آپ لوگوں کے پاس ہو۔ تو اگر دودھ پتلا ہو تو 2 چمچ ملک پاؤڈر لازمی ڈال دیجئے۔ میں نے 1 گلاس دودھ لیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس سے زیادہ بھی دودھ لینا چاہتے ہیں آپ لوگ تو پھر اس سے زیادہ بھی دودھ لے سکتے ہیں۔ 2 چمچ اس میں نے ملک پاؤڈر کا استعمال کیا۔ ملک پاؤڈر بھی اگر اس سے زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر مزید مقدار 4-5 چمچ بھی ڈال سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ جتنا زیادہ یہ چیزیں ڈالو گے اتنی زیادہ مزیدار برفی تیار ہوگی، پر اس کم بجٹ میں بھی بہت زیادہ مزیدار برفی تیار ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے 7 منٹ میں نے اس کو تیز آنچ پہ پکایا ہے۔ 7 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ ربڑی ہے ہماری بالکل تیار۔ اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اب ہم برفی کے لیے شیرہ تیار کرتے ہیں۔ 7 منٹ لگے ہیں، تیز آنچ پہ پکائے۔ ابھی جب یہ پک گیا تبھی میں نے چولہا اس کو کم کر دیا۔ بس اتنا ہی ربڑی کو گاڑھا کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب اس کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں۔ شیرہ تیار کرنے کے لیے ایک برتن لے لیا ہے اور اس میں چینی ڈال رہی ہوں۔ یہ دیکھیے 1 کپ سے تھوڑی سی کم ہے، تھوڑا سا میں میٹھا کم رکھ رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو 1 کپ فل چینی لے لیجئے۔ اب ہم یہ اس میں ڈالیں گے۔ ابھی ہم نے پانی نہیں ڈالنا، تھوڑا سا جو ہے نا ہم نے چینی کو پہلے نا کیرامل کر دیں گے، لائٹ سا کلر اس کا چینج کریں گے۔ تو یہ دیکھیے تھوڑی سی چینی کا کلر چینج ہو گیا، سارے چینی کا ہم نے نہیں چینج کرنا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی جتنی ہم نے چینی لی تھی اتنا ہی ہم نے پانی لیا، یعنی 1 کپ سے تھوڑا سا کم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب میں چولہا آن کر دوں گی۔ چولہا میں نے بند کر دیا تھا کیونکہ میں نے پانی لینا تھا۔ چینی کا خیال رکھا کرے، چینی بہت جلدی جل جاتی ہے۔ چینی اگر جل جائے تو پھر جو برفی کا مزہ ہوتا ہے نا وہ بالکل خراب ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم الائچی بھی لیں گے، 3 میں نے الائچی ڈال دی ہے اس میں۔ تو اس کے لیے اب ہم ریڈی کریں گے، 1 تار والا شیرہ ریڈی کریں گے۔ اور یہ جو نیچے چینی لگ جائے ٹینشن والی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ ابھی یہ جیسے ہی گرم ہو جائے گا، یہ پانی اس میں گرم ہو جائے گا تو نیچے جو لگی ہوئی چینی ہے وہ خود بخود اتر جائے گی۔ چمچ چلا لیں گے۔ کم بجٹ میں زیادہ مزیدار یہ برفی تیار ہوتی ہیں۔ بالکل بھی یہ نہیں پہچانی جاتی ہے کہ یہ اس میں کھوئے کا استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے جو نیچے لگی ہوئی چینی تھی وہ ساری اتر گئی ہیں جیسے جیسے یہ برتن گرم ہو رہے ہیں۔ ساری چینی کو کیرامل نہیں کرنا ہے، نہیں تو بہت زیادہ اس کا برفی کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا، پھر وہ جو ماوے والا ٹیسٹ ہے وہ نہیں آئے گا۔ بس جب چینی ڈال دیں گے، نیچے جو پہلی چینی کی لیئر ہے نا وہ جیسے ہی ہلکی سی لائٹ گولڈن ہو جائے تو آپ لوگوں نے فٹافٹ پانی ڈال دینا ہے۔ چولہا بند کر کے جب پانی ڈال دو گے تو پھر جو ہے نا چولہا آن کر دینا ہے۔ اب ہم نے 1 تار والا شیرہ تیار کرنا ہے، جلدی تیار ہو جائے گا کیونکہ پانی ہم نے کم لیا ہے۔ چلے جی اب شیرے کو چیک کر لیتے کہ 1 تار بن رہی ہے یعنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلیوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیجئے، 1-2 سیکنڈ انتظار کیجئے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے جب اسی طریقے سے تار بننے لگیں، یہ اسی طرح، تو اس سٹیج پہ شیرہ ریڈی ہے۔ اب چولہا بند کر دیتے ہیں، شیرے کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں نے فرائی پین لے لیے، چولہا میں نے نیچے آن کر دیا۔
फ्राई पैन बिल्कुल सूखा होना चाहिए, कोई ऑयल वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। मैदा डाल दिया 1 कप। मीडियम आंच पे, दरमियाने आंच पे इसको हमने रोस्ट करना है। अगर हमने चूल्हे की आंच तेज़ रखी तो क्या होगा कि ये जो हमारा मैदा है, ऑयल या घी का तो हमने इस्तेमाल अभी नहीं करना इसमें, तो ये ना जल जाएगा और इसमें से जब हम बर्फ़ी तैयार करेंगे तो इसमें से टेस्ट आएगा, उसका मैदे का टेस्ट आएगा। तो अभी हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है और दरमियाने आंच पे ये काम होना है। चम्मच मुसलसल इसमें चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से क्या होगा कि ऊपर से ये वाइट वाइट रह जाएगा और नीचे से ये जो मैदा है ये जल जाएगा। जब ये मैदा रोस्ट हो जाएगा तो इससे बड़ी अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। मैदा बहुत ज़्यादा क्योंकि वो होता है दानेदार, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसी तरीके से थोड़ा सा रोस्ट करने से क्या होगा कि इसका थोड़ा सा दाना भी बन जाएगा और बिल्कुल भी जब हम इसकी बर्फ़ी बनाएंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये बर्फ़ी घर की बनी हुई है या ये बेकरी से लाई है, बेकरी की बर्फ़ी है। तीन चार मिनट लग जाएंगे इसको रोस्ट करने में। थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लग गया, तो हल्का सा लाइट बादामी होना शुरू हो गया, पर अभी मज़ीद इसको हम रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। याद रहे कि ऑयल या घी का अभी हमने इस्तेमाल नहीं करना, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। मिनट दरमियाने आंच पे इसको हमने रोस्ट कर दिया मैदे को। इस कप से, जिस कप से हमने नाप लिया था, अभी इसी कप से मैंने घी नापा हुआ है, ये मैं घी डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैंने देसी घी ले लिया, बाकी मैंने डालडा घी लिया। अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो देसी घी का इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो फ्लेवर के लिए 1 चम्मच इसमें वो डाल दें, फ्लेवर के लिए 1 चम्मच देसी घी डाल दें। नहीं है तो बिल्कुल स्किप कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है डालने की, है तो डाल दीजिए। तो अब हम ये इसमें मिक्स करेंगे और इसमें अब हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। आधा कप घी डाला है मैंने, ठीक है। 1 कप मैंने डाल दिया, 1 कप सूजी थी और आधा कप हमने इसमें घी का इस्तेमाल करना है और 1 चम्मच मैंने देसी घी ले लिए। तो ये देखिए, जैसे ही हमने इसमें घी डाल दिया, उसको मैदे को हमने इतने अच्छे तरीके से रोस्ट किया था कि तो मैदे को हमने इतने अच्छे तरीके से ये देखिए रोस्ट किया था। जैसे ही हमने डाल दिया, साथ ही जो इसका वो है कलर है, वो बिल्कुल खोए वाली जो बर्फ़ी होती है ना, बिल्कुल ये उसी तरीके से इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें भी तकरीबन 1-2 मिनट रोस्ट कर 1-2 मिनट रोस्ट करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने रबड़ी बना के रखी हुई है, वो डाल देंगे और चूल्हे की आंच को बिल्कुल कम कर देंगे ताकि ये जो रबड़ी है ये जले ना। और एक चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखें कि शीरे को भी पहले चेक कर लीजिए। शीरा अगर आप ये देखिए ठंडे होने के बाद रबड़ी हमारी इतनी गाढ़ी हो गई है, शीरा अगर ठंडा हो गया हो तो शीरे को भी वो कर दे, गर्म कर दे ज़रा। चलो ये मिक्स कर लेते ताकि जले ना। ठंडा शीरा नहीं डालना, शीरा क्योंकि हमने पहले बना के रख लिया, तो शीरे को ज़रा चेक करना है कि वो ना हो। चूल्हा इधर मैंने अभी बंद कर दिया, इसको मैंने मिक्स करना है पहले अच्छे तरीके से, तो फिर जो है ना वो डाल देंगे, इसमें शीरा डालेंगे। तो ये हमने रबड़ी इसमें मिक्स कर दी है। अब चलते हैं खोए उसकी तरफ, शीरे की तरफ। शीरे को चेक कर लेते, शीरा अगर ठंडा हो गया हो तो शीरे को थोड़ा सा मैं गर्म कर दूंगी। रबड़ी डालने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दानेदार सा हो जाएगा और इसी तरह हमारी बर्फ़ी भी बड़ी दानेदार बनेगी इंशाल्लाह। तो अब हम इसमें शीरा डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके।
कर लेंगे पहले ये शीरा। अब हम ये बाकी शीरा भी डाल देंगे। बर्तन को सही से साफ कर लेंगे। सारा ये इसमें डाल देंगे। अब हम चूल्हा कर देंगे ऑन और तेज तेज चम्मच चलाएंगे ताकि थोड़ी सी ये जो गुठलियाँ बन गई है ये ख़त्म हो जाए और हमारी ये ज़बरदस्त सी दानेदार बर्फ़ी हो जाए रेडी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त दानेदार, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि वो नहीं होती है एक मिठाई, नाम भूल गया मुझे उसके, कलाकंद, ये बिल्कुल उसकी तरह तैयार होती है। ज़्यादा देर हम नहीं पकाएंगे, शीरा डालने के बाद 1-2 मिनट सिर्फ पकाएंगे ताकि ये ज़रा मिठास एक दूसरे में अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। तो उसके बाद जो है ना हम इसको फिर गरम गरम निकालेंगे। जिस बर्तन में भी आप लोगों ने इसको निकालना हो उस बर्तन को पहले से लाजमी घी लगा दीजिए या ऑयल लगा दीजिए, क्योंकि इसको गरम गरम निकालेंगे। अगर ये ठंडा हो जाए, मटेरियल हमारा ठंडा हो जाए तो हमारी बर्फ़ी फिर सेट ही नहीं होगी। तो हमने गरम गरम उल्टाना है। जैसे ही हम चूल्हा बंद कर देंगे फिर हम इंतज़ार नहीं करेंगे, इसको गरम गरम उल्टाएंगे। फिर शीरा डालने के बाद 3 मिनट मैंने इसको पकाया है। अगर आप लोगों का मूड हो तो यहाँ पे ऊपर भी ड्राई फ्रूट डाल के 1 मिनट इसके साथ रोस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी डालना तो ये बेहद मज़ेदार तैयार होता है और ऊपर से फिर हम ड्राई फ्रूट लगा देंगे। तो चले जी अब इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ पर मैं इसको इस बर्तन में निकाल रही हूँ। इसको मैंने पहले से ही घी लगा दी है। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर है तो वो भी रख सकते हैं इसमें, ताकि बाद में बर्फ़ी निकालने में आसानी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें डाल देंगे। और अब इसको सेट कर देंगे, ये निकाल देंगे। इलायची जो हमने डाली थी अब इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर छोटी साइज़ मोटा रखना है या पतला रखना है वो अब आप लोगों की मर्ज़ी है। तो इसी तरीके से मोटी रखनी है तो इसको यहाँ से ना ज़्यादा फैलाइए, जिस बर्तन में भी इसको सेट करना है। पतली रखनी है तो जितनी मर्ज़ी इसको फैला दीजिए। मैं एक साइड पतली रख रही हूँ और एक साइड में मोटी रखूँगी, ठीक है। इसी तरीके से हम ये कर देंगे। बस ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको गरम गरम सेट करना है। एक दफ़ा ये ठंडी हो गई है तो फिर जो है ना हमारी बर्फ़ी सेट ही नहीं होगी। देखिए इसी तरीके से मैंने ये सेट कर दिया है। अब अगर दिल करे तो ऊपर ये कुछ कटे हुए बादाम है ये डाल दें, नहीं भी दिल करना तो ये बाद में भी ऊपर इसी तरीके से लगा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इसको ठंडे होने के लिए रखूँगी। अब मिलते हैं तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद। फ्रिज में नहीं रखेंगे, इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 घंटा गुजरने के बाद बर्फ़ी हमारी बड़ी अच्छे तरीके से सेट हो गई है। तो चले जी अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, छोटे पीस रखना चाहते हैं तो छोटे कर लीजिए, बड़े रखना चाहते तो बड़े कर ले। लंबाई चौड़ाई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिए। अगर नीचे बटर पेपर लगा होगा तो बर्फ़ी को निकालने में ज़रा ज़्यादा आसानी होती है। मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने नीचे ना वो लगा दिया था, ऑयल लगा लिया था। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार दानेदार बर्फ़ी तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए
इतने पीसेस रखना चाहते तो इतने रख लीजिए। अच्छा जी, इससे के ऊपर से अगर ये आप लोग अटाना भी चाहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त बनी। अगर बादाम आप लोगों को नहीं पसंद तो बादाम जो है ना इसी तरीके से उतार भी सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। इस पर लगाना चाहते तो लगा लीजिए, उतारना चाहते तो उतार लीजिए। चले जी, बाकी बर्फ़ी को अब साइड पे करते हैं। इसे एक पीस के अब छोटे छोटे पीसेस भी कर लेते हैं। बड़े रखना चाहते हो तो बड़े रख लीजिए। तैयार ये बेहद ज़बरदस्त होती है, इतनी मज़े की नरम सॉफ्ट ये तैयार हुई है। ये देखिए हाथ से भी तोड़ के मैं चेक करवा रही हूँ, बिल्कुल दानेदार ये बर्फ़ी तैयार होती है। तो इसी पे मैं ये आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।